Yes, friends, today topic that is electrostatic field energy density means the electrostatic energy per unit volume of the space between the two plates of a capacitor is called electric energy density, that is electrostatic field energy or energy density. The expression for energy stored in a charge capacitor, which we have already derived, U is equal to 1 upon 2 CV square. C is equal to epsilon naught A upon D and V is equal to ED. Just we put the value of C and V in this formula and we simplify it and we will get this one. U is equal to 1 upon 2 epsilon naught A E square and D square. E and D cancel out this one, and so U dash energy per unit volume, that is area of plate, and D distance between the plates, so that is the volume. So energy per unit volume, that is the energy density, 1 upon 2 epsilon naught E square, and it is the most popular formula. And next, sharing of charges or common potential. There are two capacitors of their capacitance is C1, C2, and charges on the capacitors Q1 and Q2, and their potential P1 and B2 respectively. So Q1 is equal to C1 B1 and Q2 is equal to C2 B2. Total charge before sharing of the charges means we add both the charges Q1 and Q1 plus Q2, C1 B1 plus C2 B2. Let these three capacitors are connected by a parallel by a connecting wire. इन दोनों कैपेसिटर्स को पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे कनेक्टिंग वायर से, and then the charge flow from higher magnitude of charge to the lower magnitude of charge means this flow continue till the potential of both the capacitor becomes same or equal. So this equal potential is called common potential. After the sharing of the charge, Q1 dash is equal to C1V and Q2 dash is equal to C2V. Total charge Q1 dash plus Q2 dash. Put the value of Q1 dash plus Q2 dash, so we will get C1V plus C2V. From the law of conservation of charge before the connecting to each other and after the connection. So that is total charge before the connecting both the capacitor is equal to C1V1 plus C2V2 is equal to C1 plus C2, and that is V is common. So we will get the common potential. V is equal to C1V1 plus C2V2 upon C1 plus C2. So that is the common potential of both the capacitor. But when we have connected both the capacitor in a parallel combination, then what is the loss of energy during this process? So how do we determine? First of all, we have to write down the total energy before connecting both the capacitor. So U is equal to 1 upon 2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस 1 upon 2 C2 V2 का स्क्वायर. मीन भाई पहले कैपेसिटर की एनर्जी है, ये दूसरे कैपेसिटर की एनर्जी है, दोनों को ऐड कर दिया बिफोर द कनेक्टिंग टू ईच अदर. नाउ वी कनेक्ट देम. कनेक्ट करने के बाद टोटल एनर्जी आएगी 1 upon 2 इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस C1 plus C2 होगा और V स्क्वायर. नाउ वी डिटरमाइन द लॉस ऑफ एनर्जी मीन्स इनिशियल माइनस फाइनल. माइनस किया, वी पुट देयर वैल्यूज एंड पुट द वैल्यू ऑफ अ कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे एंड सिंप्लीफाई करेंगे. वी विल गेट डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2 ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 C1 प्लस C2. इस पर बेस कभी कभी बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, इसलिए इसका आना आपको जरूरी है. अब नेक्स्ट लास्ट टॉपिक, अभी एक वीडियो मैंने डिस्कस किया था कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, जब बैटरी से डिस्कनेक्टेड है तो उसके चार्ज, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक फील्ड, कैपेसिटेंस एंड एनर्जी पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, और जब हमारा कनेक्टेड है तो क्या इफेक्ट पड़ेगा. इसको मैंने टेबल फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है. मीन्स व्हेन बैटरी डिस्कनेक्टेड मीन्स Q कांस्टेंट, चार्ज इट इज कांस्टेंट है. Battery disconnected from the parallel plate capacitor, that is change. What is change? Medium filled with dielectric. Then charge क्या हुआ? Unchanged. That is unchanged. It decrease
ये हमारा डिक्रीज करेगा पोटेंशियल डिफरेंस बाई वी इज इक्वल टू क्यू ओवर सी। क्यू ओवर सी, क्यू कॉन्स्टेंट रहेगा, दैट इज अनचेंज है, तो सी कैपेसिटेंस आपका यहाँ पर कैपेसिटेंस इंक्रीज किया भाई, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा क्योंकि डाइलेक्ट्रिक स्लैब डाला हुआ है, तो एप्सिलॉन आर से मल्टीप्लाई किया, मीडियम फील्ड विद द डाइलेक्ट्रिक, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है, कैपेसिटेंस इंक्रीज किया है तो सी इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज कर जाएगा। अब V डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिक्रीज करेगा कि बिकॉज E इज कॉन्स्टेंट, D इज कॉन्स्टेंट सॉरी, सो ये भी डिक्रीज करेगा, ये इंक्रीज करेगा। अब यहाँ पर हमारा Q कॉन्स्टेंट है, C हमारा इंक्रीज कर रहा है तो दिस विल डिक्रीज। क्लियर? नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स डिक्रीज, प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस डिक्रीज कर रहे हैं, दैट इज अनचेंज, नो चेंज। डी जब V इज यहाँ पर अनचेंज रहेगा, अगेन ये भी डिक्रीज कर रहा है, क्यों डिक्रीज कर रहा है, मीन्स जब ये D डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, C इंक्रीज करेगा, और C इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, तो V डिक्रीज किया। नेक्स्ट, यहाँ पर D को भी डिक्रीज किया, V को भी डिक्रीज किया, दैट इज अनचेंज्ड, दोनों में ये इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पर C डिक्रीज कर रहा है तो इसका मतलब U, C इंक्रीज कर रहा है तो यहाँ पर U, D डिक्रीज कर रहा है तो D डिक्रीज कर रहा है तो ये इंक्रीज कर रहा है, C इंक्रीज कर रहा है, ये इंक्रीज कर रहा है तो ये डिक्रीज हो जाएगा, ये डिक्रीज हो गया। क्लियर? नेक्स्ट, एरिया ऑफ द प्लेट्स, एरिया ऑफ द प्लेट्स इंक्रीजेस, यहाँ पर ये इंक्रीज किया तो C इंक्रीज किया, C इंक्रीज किया तो पोटेंशियल भी डिक्रीज किया, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो ये भी आपका डिक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर D में कोई चेंज नहीं है, जब ये डिक्रीज कर रहा है तो ये भी डिक्रीज करेगा, और ये इंक्रीज किया है ये डिक्रीज करेगा। तो ये वेरिएशन है जब बैटरी डिसकनेक्टेड है, और यहाँ पर चार्ज इट रिमेन सेम, चार्ज रिमेन सेम होगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा इन ऑल केसेस, कैपेसिटेंस पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, इट विल इंक्रीज करेगा, जब ये इंक्रीज कर रहे हैं तो ये यहाँ पर डिक्रीज के केस आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर वेरिएशन है इनमें। नाउ बैटरी कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद द बैटरी, तो यहाँ पर उसमें हमारा चार्ज कांस्टेंट था, यहाँ पर V कांस्टेंट हो जाएगा, V कांस्टेंट हो जाएगा तो दैट इज अनचेंज्ड, ये वाला पार्ट अनचेंज हो गया। मीडियम फील्ड विद डाइलेक्ट्रिक, डाइलेक्ट्रिक तो ये इंक्रीज करेगा, ये डिक्रीज कर रहा है डिस्टेंस तो ये भी इंक्रीज किया, ये भी इंक्रीज करेगा। Q इज इक्वल टू CV, तो यहाँ पर पोटेंशियल सेम है, ये इंक्रीज कर रहा है तीनों केसेस में, तो यहाँ पर चार्ज भी तीनों केसेस में इंक्रीज करेगा, ये अनचेंज रहेगा। यहाँ पर V हमारा कांस्टेंट है, D पे डिपेंड कर रहा है तो ये अनचेंज रहेगा, और ये डिस्टेंस डिक्रीज की है तो ये इंक्रीज करेगा, ये अनचेंज रहेगा, ये बता ही दिया है। नेक्स्ट, C हमारा यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है इन ऑल केसेस, V कांस्टेंट है तो ये भी इंक्रीज करेगा। तो इस टेबल की फॉर्म से हम इसे इजीली लर्न कर सकते हैं, और इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारा डिस्कशन होगा क्वेश्चंस पे बेस्ड। ओके, वी विल स्टार्ट फ्रॉम नेक्स्ट वीडियो।